Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. So students, in our last class we have just completed the chapter number 13, that is fun with magnets. And today students will be doing the questions and answers of this particular chapter, chapter number 13. So let's start with the first question of this particular chapter students. The first question, that is fill in the blanks. So right students, first fill up is artificial magnets are made in different shapes such as dash, dash and dash. So what are the shapes in which artificial magnets are made? So students, it is made in bar shaped, right? So bar magnet. One such shape is students horseshoe magnet, right? We have just looked at the picture of the horseshoe magnet like the class students in which we have studied, right? So next one is horseshoe magnet. And students, the last one is cylindrical magnet, right students? So different type of artificial magnets are made in different shapes such as bar magnet, horseshoe magnet and cylindrical magnet, right students? Now next statement, the materials which are attracted towards a magnet are called, so the materials that are attracted towards the magnet are called magnetic materials, whereas there are some materials that are not at all attracted towards the magnet and those materials are called non-magnetic materials. Alright students, when I am saying the examples of magnetic substances or the magnetic materials, then it is nickel, cobalt, iron and so many things. And if I am talking about non-magnetic substances, then we have wood, rubber, plastic and so many things. So students, the materials that are attracted towards the magnet are called magnetic materials, right? So those are magnetic materials. Right students? Now the next question, paper is not a dash material. So students, what kind of material is a paper? Paper is not at all attracted towards the magnet. You can have the activity at your home also. Take a magnet and rub it on the paper. Now you will see that the magnet is not at all attracted by the paper or vice versa. So it means that paper is something that is not at all attracted towards the magnet. So students, paper is not a magnetic material, right students? You should write magnetic. Right students, paper is not a magnetic material. Looking at the next question students, क्या है वो? In olden days, sailor used to find direction by suspending a piece of what? So to find the direction students, sailors used a particular substance, that is magnet, okay? So magnet is suspended freely and the magnet has a property that it helps in finding the directions, right? So students, in olden days, sailor used to find direction by suspending a piece of magnet. Right students? एक मैग्नेट के पीस को सस्पेंड किया जाता था और जब वो फ्री होता था, रेस्ट स्टेट पे आता था, तो स्टूडेंट्स वो कौन से डायरेक्शन में हिट करता था? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट always has dash poles. A magnet will always have two poles, it is north pole and the south pole, right students? It has always two poles. And this is the last fill up students. Looking at the second question, that is true and false. Alright students, so state whether the following statements are true or false. And the first statement is students, a cylindrical magnet has only one pole. So students, is there any magnet that has only and only one pole? So students, this statement is a complete lie. This is a false statement because whatever be the shape of magnet, whatever be the size of magnet, whatever be the type of magnet, it will always be having two poles, that is north pole and the south pole. So no such magnet is present that is having only and only one pole. A magnet always has two poles, right students? Just keep this in your mind. Magnet always have two poles and no such pole and no such magnet is present in which more than one, more than two or one pole is present, right students? Looking at the next question, artificial magnets were discovered in Greece. So students, is this so? क्या जो artificial magnets थे वो ग्रीस में डिस्कवर हुए थे? फर्स्टली स्टूडेंट्स, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स थे वो ग्रीस में डिस्कवर नहीं हुए थे. ग्रीस में क्या डिस्कवर हुआ था?
Natural magnet. So students, it is believed that there lived a boy and a shepherd named Magnes, and he used to have that particular herd of sheep and goats to graze in a particular mountainside, and a rock attracted his piece of stick that is having the iron piece, right? So it is believed that that particular rock where the gods and the sheep were grazing was a rock of magnet, right? Natural rock of magnet, which was named after Magnes. What was the name of that particular rock, students? That was given the name of magnetite, and the place where this incident happened was the place in the Greece, ancient Greece, okay, that is called Magnesia, right students? So artificial magnets were not discovered, but the natural magnets are said to be discovered in the Greece. So this is a false statement, right? Looking at the third statement, students, similar poles of a magnet repel each other. Similar poles means like pole always repel each other, and this is a complete truth, okay? So this statement is a true statement. Like pole always repel each other, right? Looking at the next question, students, maximum iron filling stick in the middle of the bar magnet when it is brought near them. Is that so? जब भी आप किसी बार मैग्नेट के पास बहुत सारी आयरन फिलिंग्स लेके जाओगे, तो क्या ज़्यादातर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो उसके मिडल में स्टिक करेंगी? ऐसा होता है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंप्लीट लाई. Maximum iron filling will stick to the end or the poles of the bar magnet. मिडल में नहीं बल्कि वो साइड्स में जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे ना, उधर ज़्यादा वो स्टिक करेंगी. सो दिस इज अ कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट. So students, this is false. Looking at the next question and the next statement, students, bar magnets always point towards north-south direction. This is completely true. Whenever we are talking about any kind of magnet, then it always head towards the north-south direction. And if we are talking about the bar magnets also, students, it will always point towards the north-south direction. So this is also a truth. Alright students, looking at the next statement, a compass can be used to find east-west direction at any place. क्या एक compass को आप east-west direction निकालने के लिए use कर सकते हो? So students, a compass can be used to find any kind of direction. For example, students, if we know the north direction, okay, then we can easily find out the rest of the directions, right? और compass क्या करने में help करेगा? हमें north और south direction बताएगा ना कि this is north and this is south. और अगर ये directions पता लगी तो फिर तो understood ही है ना कि east west कौन सा है? Understood ही है. So students, a compass can be used to find east west direction at any place. Obviously it can. So this is also a true. कई बच्चे इसको misconcept करके ये लिख सकते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ north south बताता है. सारी directions बताता है. अगर आपको north south पता लगी है तो it means आपको बाकी directions भी पता लग चुकी है, right? So this is a true statement. Looking at the next statement, students, rubber is a magnetic material. Is that so? Just think in your mind, when you are placing a magnet with the rubber, is that particular rubber material attracted towards the magnet? So the answer is no. Rubber is not at all a magnetic material because it is not at all attracted towards the magnet. So this is a false. This is a false statement. Alright students, looking at the next question, what is that? The question number 3. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of the magnet. Why? Because the pencil sharpener is kind of a magnetic in nature, right? जितने भी poles होती हैं और pencil sharpener क्योंकि इसका जो blade होता है वो iron का होता है तो it get attracted towards the pole of the magnets. Although its body is made up of plastic, जबकि उसकी body plastic की होती है, ठीक है? Name a material that might have been used to make some part of it. ठीक है? ऐसा क्या मटेरियल है या फिर ऐसा कौन से मटेरियल को आप मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह की कोई पार्ट बनाने के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स? सो वी कैन यूज़ आयरन. आयरन इज़ यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ द शार्पनर ड्यू टू विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है, अब यही रीज़न है कि मैग्नेट की तरफ एक शार्पनर अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज अगर उसकी अपर बॉडी रबर की है तो रबर जो होता है दैट इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो अगर हमें बाई चांस अट्रैक्शन फील कराना है थ्रू मैग्नेट तो वी हैव टू मेक सम पार्ट ऑफ द शार्पनर of iron so that it can feel attraction towards the magnet, right students? So the answer is iron is used to make
some part of the sharpener due to which it is attracted towards the magnet. Right, students? Looking at the next question, what is that? This is mere match columns, right, students? So column 1 shows different positions in which one pole of the magnet is placed near that of the other. मतलब बेसिकली कॉलम 1 में आपको वो पोजीशंस बता रखी है जिसमें अलग अलग पोल जो होते हैं ना मैग्नेट्स के वो प्लेस्ड हैं, ठीक है. और दूसरे कॉलम में हमें बता रखा है कॉलम 2 इंडिकेट्स दिस रिजल्टिंग एक्शन कि अगर ये दोनों ऐसे साथ में रखे होंगे तो क्या एक्शन होगा. कॉलम 2 वो एक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलम 1 में बोल रखा है कि साउथ नॉर्थ, तो ये अनलाइक पोल्स हैं. तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, कौन सा एक्शन करते हैं, वो आपको कॉलम 2 में दे रखा है और आपको मैच करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. So column 2 indicates the resulting action between them for each situation. So fill in the blanks. So first is column 1, column 2, north north. North north are the like poles and like pole always repel each other, right? So column 2 will have the result as repulsion. Why repulsion, students? Because there are like poles, right? So right, like poles always repel each other. So the action is repulsion. Next action is students attraction that is given to us. अगर attraction हो रही है तो कौन से poles होंगे, unlike poles होंगे. अगर एक पोल नॉर्थ है तो unlike पोल कब होगा, जब यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है. नॉर्थ साउथ पोल and then there will be attraction. Alright students. Next we have south north pole, south and north. So these are unlike poles and when you have the unlike poles then it has attraction action. So the action will be attraction. Alright students, looking at the fourth part, we have south pole, the first pole we don't know, and the action is repulsion. When there is repulsion then it means we are dealing with the like poles, so south south. Alright students, and with this we are completed with the fourth question students. So students have a look, north north repulsion, north south attraction, south north attraction, south south repulsion. So this is the basic answer of this particular fourth question. Looking at the question number 5 students, what is that? Fifth question, write any two properties of a magnet. So we have to mention any two properties of magnet. So firstly students, we know that magnets are used to find the directions. So magnet always head towards the north south direction when it is suspended freely and it comes to the state of rest. So this is one property. So students, the second property is that a magnet always have two poles. एक magnet के पास हमेशा दो poles होते हैं. Have a look students. So the properties are a magnet has two poles, north pole and the south pole, right? And the like poles repel each other and the unlike pole attract each other, right? So like poles repel and the unlike poles attract each other. And magnets have the property that it always head towards north-south direction when it is suspended freely and when it comes to the state of rest. Alright students, looking at the next question students, that is question number 6. Where are the poles of a bar magnet located? अब जो poles होते हैं एक bar magnet के वो located कहाँ होते हैं? We have to answer this thing. We know that they are located at the end side or the end portions of the magnet. How we can see this thing? Poles are located at the ends of bar magnet just before the ends, right? जहाँ पे उनके ends होते हैं ना, उसके end पे ही जो होते हैं वो हमारे poles होते हैं. And they are north pole and the south pole. Alright students, and this is what we meant by the location of the poles, right students? Looking at the next question students, the question number 7. A bar magnet has no markings to indicate its pole. ठीक है, एक बार मैग्नेट है, उस पर कोई भी मार्किंग नहीं कर रखी है दोनों पोल्स को लेके. हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज द नॉर्थ पोल लोकेटेड? आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा एंड जो है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है, अगर उस पर मार्क्ड नहीं है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है. सो स्टूडेंट्स, दिस कैन बी डन बाय द प्रॉपर्टी दैट सेज दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? हैव अ लुक. टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली with the help of a thread. अब आप क्या करना, एक बार मैग्नेट लो, उसको सस्पेंड करो फ्रीली, ठीक है, एक थ्रेड की हेल्प से, राइट? द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल विल बी रिगार्डेड एज नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट, राइट स्टूडेंट्स? अब अगर कोई भी मैग्नेट नॉर्थ पोल की तरफ क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ अगर पॉइंट करेगा ना, तो वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? वो नॉर्थ पोल होगा आपका, ठीक है.
take a bar magnet with non or marked poles on it. Let the north pole of the magnet be brought closer to the suspended magnet at the end that is pointing towards north. If it is shows repulsion, then it is confirmed. So students, next में क्या है, फर्स्ट में तो आपको ये बोल रखा है कि कोई भी अगर आप बार मैग्नेट लोगे, उसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो आप देखो कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. अब जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है मतलब वो कौन सा पोल है, आपका नॉर्थ पोल है. जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है मतलब वो कौन सा पोल है, साउथ पोल है. ठीक है, ये तो था फर्स्ट कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड पोर्शन में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इधर हम वो रिपल्शन रिट्रैक्शन प्रॉपर्टी से ही शो करने वाले हैं. कैसे, कोई एक अगर आपको मैग्नेट के अंदर मार्किंग नहीं दे रखी, लेकिन दूसरी मैग्नेट तो ऐसी हो सकती है ना जिसके अंदर मार्किंग हो, तो उसका नॉन मार्किंग आप उसका देखो आप नॉर्थ पोल कौन सा है. ठीक है, अब उसके नॉर्थ पोल को आप एक पोल के पास लेके जाओ. ठीक है, अगर वो अट्रैक्शन फील कर रहा है तो मतलब जो जिसकी हमने बात कर रही है वो साउथ वाला पोल की बात कर रहे हैं, फिर आप दूसरे वाले के पास लेके जाओ. सो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और साउथ साउथ क्या करेंगे, साउथ नॉर्थ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर हमें नॉर्थ पोल देखना है और हम नॉर्थ पोल ही लेके चल रहे हैं, तो जो पोल उस कंसिडर्ड बॉल मैग्नेट का रिपल्शन शो करेगा तो वही आपका नॉर्थ पोल होगा. ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रखी है क्या, कि वी हैव टू टेक अ मैग्नेट विद नॉन और मार्क्ड पोल्स ऑन इट, जिसका मार्किंग कर रखा हो. लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी ब्रॉट क्लोजर टू द सस्पेंडेड मैग्नेट. अब जो सस्पेंशन कर रखे अपने मैग्नेट उसके पास लेके जाओ उसके नॉर्थ पोल को. ठीक है स्टूडेंट्स, एट द एंड दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रखा हो. तो फिर आप जो ये करोगे ना, तो ये अब क्या करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो हम देख लेंगे कि हाँ जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है ये सही है. ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो विदाउट मार्क मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल कौन सा है. ठीक है स्टूडेंट्स, लुकिंग एट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 8. यू आर गिवन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट अ मैग्नेट. सो स्टूडेंट्स, अब हम एक आयरन स्ट्रिप को एक मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये एक्टिविटी हमने हमारी क्लास जब थी इस पर्टिकुलर जिसमें हमने कंसेप्ट सीखा था उसमें प्रॉपर्ली की थी. सो हैव अ लुक व्हाट वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर मेकिंग. So making a magnet is considered with taking an iron strip, right students, and place it on a table, right? उसको एक टेबल पे रख देंगे. Now take a bar magnet and place one of its pole near one edge of the strip of the iron. अब आप क्या करो, एक बार मैग्नेट लो, जहाँ पे आपने वो आयरन स्ट्रिप रखी है ना, उधर मैग्नेट का कोई एक पोल लेके जाओ उसके एंड के पास, और उसमें उस एक एंड से दूसरे एंड तक उसको रब करोगे विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट. और आप यही प्रोसेस सेम डायरेक्शन में करते रहोगे रिपीटेडली. ठीक है, और ये प्रोसेस कंप्लीटली करने के बाद क्या होगा, 30-40 टाइम्स करोगे आप, तो फिर आप देखोगे कि कभी भी आप उस नीचे वाले आयरन स्ट्रिप के पास में कोई आयरन फिलिंग लेके जा रहे हो और अगर वो अट्रैक्शन शो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं. और अगर स्टूडेंट्स नहीं आई है तो यही प्रोसेस आप बार बार दोबारा रिपीट करो, एंड इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो आयरन स्ट्रिप के अंदर आ जाएंगी. ठीक है, सो हाउ कैन वी मेक अ बार मैग्नेट स्टूडेंट्स. नाउ take a bar magnet and place one of its pole near one edge of the strip of the iron without lifting. So students, इस केस में लिफ्टिंग नहीं होगी बार मैग्नेट की कभी भी, आप एक ही पोल से उसको बार बार रब करेंगे. ठीक है, so without lifting it, move it along the length of the iron strip till you reach the other end. ठीक है, now lift the magnet and bring the pole to the same point of strip फ्रॉम वेयर यू बिगिन. अब जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था दोबारा उधर लेके जाना है, फिर वैसे करना है. ठीक है, हैव अ लुक स्टूडेंट्स लाइक दिस पर्टिकुलर फिगर. आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब आप इसको इधर लेके जा रहे हैं. ठीक है, फिर आपने इसको मैग्नेट को यहाँ से लिफ्ट किया, फिर यहाँ पे सेम पोल में सेम पोल लेके गए. ठीक है, सेम एंड से सेम एंड लेके गए, फिर यहाँ तक आया, फिर इस टाइप में गया, रब किया आपने, फिर ये वापस यहाँ पे लिफ्ट करके आए, फिर यहाँ तक रब करके गया, फिर यहाँ पे लिफ्ट करके खुद लेके आए. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम 30 टाइम्स 40 टाइम्स ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स. ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स नियर द स्ट्रिप एंड ऑब्जर्व दैट द स्ट्रिप अट्रैक्ट्स द फिलिंग. अब ध्यान दो कि जो आयरन स्टिक होगी ये उन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगी, और अगर वो अट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं. और इन केस अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि अभी वो मैग्नेट नहीं बनी है, तो फिर आप यही प्रोसेस को दोबारा करोगे कुछ देर तक, और फिर हम देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स इवेंचुअली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इंडिकेट्स दैट द आयरन स्ट्रिप बिकम्स मैग्नेट. ओके,
Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि अभी आपने लिफ्ट किया था, इस वाले पॉइंट से आप कर रहे थे ना, इसको मूव करा रहे थे. अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये वाला पॉइंट आप इधर ले आओ और आप इधर ऐसे मूवमेंट की जगह ऐसे मूव कराने लग जाओ, तो ये मैग्नेट नहीं बनेगी. ठीक है, क्योंकि फिर ये अट्रैक्शन रिपल्शन का प्रोसेस रहेगा जो कि उसको मैग्नेट बनने ही नहीं देगा. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायरेक्शन सेम रखो बार मैग्नेट की और पोल्स जो कि रब हो रहे हैं वो सेम रखो. ठीक है स्टूडेंट्स, so this is your question. Looking at the next question students, the question number 9, how is compass used to find directions? अब एक कंपास को कैसे यूज किया जाता है डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मैग्नेटिक निडल जिसके अंदर पाइवॉट की जाती है, और मैग्नेटिक निडल जब भी किसी प्लेस पे रखी जाती है, वो कंपास को किसी प्लेस पे रखा जाता है, तो इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ पोल को अलग कलर से इंडिकेट किया जाता है. ठीक है, इसके अंदर ग्लास कवर होता है मैग्नेटिक निडल के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट्स, और कंपास क्या काम करता है, फाइंडिंग डायरेक्शंस का काम करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. अ कंपास इज अ स्मॉल केस ऑफ ग्लास. ग्लास का कुछ छोटा सा केस होता है. ये मैग्नेटिक, इसके अंदर एक निडल होती है जो मैग्नेट की बनी होती है. बेसिकली एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है जो इसके अंदर पाइवॉट की जाती है. सो अ कंपास इज अ स्मॉल केस ऑफ ग्लास. अ मैग्नेटाइज्ड निडल इज पाइवॉटेड इनसाइड द बॉक्स. ठीक है, अब ये निडल क्या करती है, फ्रीली रोटेट कर पाती है. ठीक है, कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शंस. अब यहाँ पे देखो, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस का डायल होता है जहाँ पे सारी डायरेक्शंस को इंडिकेट किया जाता है. ठीक है, सो द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शंस. अब कंपास को एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे हमें डायरेक्शंस पता लगानी है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हेन द नीडल कम्स टू द रेस्ट इट इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब जब ये पूरा रोटेट करने के बाद निडल एक पॉइंट पे आती है जहाँ पे रेस्ट सिचुएशन है स्टूडेंट्स, तो फिर हम बोलते हैं कि क्योंकि निडल यहाँ पे अब रेस्ट पे आई है, तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट पे आई है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे. ठीक है, ये हमेशा यही इसी पोजिशन पे रेस्ट पे आती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो the compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at two ends of the needle. ठीक है, इसको तब तक रोटेट किया जाता है, किसको, कंपास को, तब जब तक कि उसका जो निडल है वो नॉर्थ साउथ एंड की तरफ पॉइंट ना करे. ठीक है, यूजुअली डिफरेंट कलर्स आर यूज टू पॉइंट द एंड्स ऑफ द निडल टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल को इंडिकेट करने के लिए यूजुअली निडल को डिफरेंट डिफरेंट कलर से इंडिकेट किया जाता है. सो दिस इज़ द यूजेज ऑफ कंपास की कंपास को डायरेक्शन फाइंड करने में कैसे यूज़ किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट है. लुकिंग एट योर 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या है वो, अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ टॉय बॉट दैट हैज़ बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब. अब इसमें क्या बोला हुआ है, एक मैग्नेट को अलग अलग डायरेक्शन से एक टॉय बोट के पास लेके आया गया है. वो टॉय बोट जो कि पानी में फ्लोट कर रही थी. ठीक है, एक टब के अंदर पानी था, उसके अंदर वो टॉय बोट फ्लोट कर रही थी और मैग्नेट को अलग अलग डायरेक्शन से उसके पास लेके आया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1. ठीक है, अब कॉलम 1 में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, कि जब उनके पास लेके गए तो क्या क्या अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, क्या क्या अफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है. पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्व इफेक्ट आर मेंशन्ड इन कॉलम 2. और इनका क्या अफेक्ट हो सकता है, किस रीजन से हो सकता है, वो आपको कॉलम 2 में इंडिकेट किया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैच द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. अब आप कॉलम 1 को मैच करोगे कॉलम 2 से. कॉलम 1 में ऑब्जर्व इफेक्ट्स है और कॉलम 2 में रीजंस है, बट हमें मैच करना है. ठीक है, हैव अ लुक स्टूडेंट्स, कॉलम 1, दीज आर ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स. And these are the reasons behind effects. Right? So students, first is board gets attracted towards the magnet. First, second, third, fourth and fifth. First column है, क्या observe किया effect हमने, बॉट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. अब जो बॉट थी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन फील कर रही है. अब रीजन क्या हो सकता है, बॉट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड. ठीक है, बॉट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड. नेक्स्ट,
boat has a small magnet fixed along its length. ठीक है. Next, boat is made up of magnetic material. Next, boat is made up of non-magnetic material. क्वेश्चन क्या है कि बोट जो है अट्रैक्शन फील कर रही है मैग्नेट की तरफ, तो मैग्नेट की तरफ क्या अट्रैक्शन फील करता है, जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. ठीक है. सो अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, तो वो इवेंचुअली बोट की तरफ या फिर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा. ठीक है. सो द आंसर कैन बी दिस, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, दैट इज वाई बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. अब बोट मैग्नेट की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि बोट किससे बनी हुई है, किसी मैग्नेटिक मटीरियल से बनी हुई है. So this is your answer number 1. Have a look at the answer, students. Boat is made up of magnetic material. Boats get attracted towards the magnet. So this is your answer. वही है ना? Now students, next देखो. Boat is not affected by the magnet. अब boat affect नहीं हो रही है magnet से. तो boat कब magnet से affect नहीं होगी? जब boat एक non-magnetic material से बनी होगी. ठीक है? So when the boat is made up of non-magnetic material. ठीक है? So this is the answer number 2. Have a look, students. The boat is not affected by the magnet when the boat is made up of non-magnetic material. ठीक है. कि अगर ये कब affect नहीं होगी, जब वो non-magnetic material से बनी होगी. ठीक है. Next, boat moves towards the magnet if north pole of the magnet is brought near its head. यहाँ देखो कि बोट मैग्नेट की तरफ तब मूव कर रही है जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप उसके पास, उसके हेड के पास लेके आ रहे हो. तो हेड के पास अगर नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो, तो उसकी तरफ कब आएगी, जब उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगी. अट्रैक्शन कब फील करेगी, जब अनलाइक पोल्स होंगे. तो मतलब बोट क्या करेगी, मैग्नेट की तरफ तब आएगी जब आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके अंदर, उसके पास लेके जा रहे हो, नियर इट्स हेड. तो मतलब बोट का हेड कौन सा होगा उस टाइम पे, साउथ होगा. ठीक है. हैव अ लुक. बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड. अगर नॉर्थ पोल इसके हेड पे होता और मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल आता, तो फिर तो रिपल्शन होती ना. सो नेक्स्ट, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट हेड. ये होगा. अब अगर बोट के अंदर एक ऐसा मैग्नेट हुआ जिसका साउथ पोल उसके हेड की तरफ है और मैग्नेट की नॉर्थ पोल की तरफ वो आ रहा है, तो फिर वो उसकी तरफ जाएगी. ठीक है. सो दिस इज योर थर्ड रीजन. ठीक है. हैव अ लुक, स्टूडेंट्स. बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड. ठीक है. सो यही आपका आंसर था. ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट. अब ये कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है उससे, मतलब रिपल्शन शो कर रहा है. बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड. ठीक है. जब नॉर्थ पोल को उसके हेड की साइड पे लेके जाया जा रहा है, तो बोट क्या कर रही है, उसके दूर जा रही है. ठीक है. तो बोट के अंदर जो मैग्नेट होगा स्टूडेंट्स, वो भी कौन से वाले पोल का होगा, लाइक पोल का. क्योंकि रिपल्शन कब होती है, जब लाइक पोल्स होते हैं, तो मतलब नॉर्थ का ही होगा. ठीक है. सो बोट इज फिक्स्ड विद अ मैग्नेट, जिसका जो नॉर्थ पोल है वो उसके हेड के साइड है. ठीक है. सो दिस इज योर फोर्थ रीजन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, एंड दिस इज योर आंसर. राइट. द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स क्या है वो. ठीक है. हैव अ लुक. बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. अब बोट क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना ही फ्लोट कर रही है. मतलब कि बोट के अंदर कोई भी स्मॉल मैग्नेट है जो उसकी लेंथ के साइड फिक्स्ड है. ठीक है. सो दिस इज योर फिफ्थ रीजन. वैसे भी यही बचा था. ठीक है. लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बिकॉज बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स length. All right students, and this is the concerned answer students, and with this we are completed with the 13th chapter of our syllabus, that is fun with magnets. All right students, so students, in the next class we are going to do the starting of the 14th chapter of our syllabus. Till then, have a nice day to you all. Bye bye.